نواز شریف 22 ستمبر صبح 11 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں حاضر ہوں۔ نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برطانیہ بھیج دیے گئے۔ سیکرٹری خارجہ امور کو گرفتاری کی تعمیل کا حکم۔ وارنٹ پارک لین لندن کے پتے پر ارسال کیے گئے ہیں۔ کل این آر او کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا۔ اپوزیشن کو مزید سخت مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کی گفتگو، کہا ملک کے لیے ایف اے ٹی ایف کی منظوری بہت ضروری تھی، نیب قانون میں ترمیم نہیں ہوئی۔ پاکستان کا ڈیٹا بھارت کو فروخت کیا جاتا رہا۔ نون لیگ، میڈیا گروپ اور بھارت کا واضح گٹھ جوڑ تھا۔ فیصل واؤڈا کا ٹویٹ، لکھا ایس سی سی پی ڈیٹا چوری کی رپورٹ آج شام وزیر اعظم کی میز پر ہوگی۔ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، ایسے نہیں جانے دیں گے۔ وقت آ گیا ہے ذہن کو آزاد کر کے اپنا راستہ بنائیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کا راستہ اختیار کریں۔ وزیر اعظم کا ہری پور میں خطاب، کہا تعلیم پر سرمایہ کاری سے بچوں کا مستقبل بہتر ہوگا۔ پاک آسٹریا انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کا افتتاح کر دیا۔ سرکاری افسران اپنا رویہ تبدیل کریں، وزیر اطلاعات پنجاب کی پریس کانفرنس، کہا بلیک میلنگ کا شکار افراد کے دروازے کھلے ہیں، لڑکی کے والد کا اظہار تشکر۔ گجر پورہ ریپ کیس کا مرکزی ملزم عابد گرفتار نہ ہو سکا۔ واقعے کے بعد عابد گھر آیا، شناخت ہونے پر فرار ہو گیا، نہیں معلوم وہ کہاں ہے۔ اہلیہ بشرا کا ابتدائی بیان، کہا عابد سے دوسری شادی کی ہے۔ شوہر پر تشدد کرنے کا الزام، قصور میں رات گئے سرچ آپریشن، ملزم کے 5 رشتہ دار زیر حراست، خاتون بھی شامل۔ تعلیمی ادارے کھلتے ہی کورونا کی انٹری، آئی بی اے جامعہ کراچی کے طالب علم میں کورونا کی تصدیق۔ ادارہ 2 روز کے لیے بند کر دیا گیا۔ سہمن اور مٹیاری کے 16 اساتذہ کورونا سے متاثر، خود کو گھروں میں قرنطینہ کر لیا۔ کالج پرنسپل کا ڈائریکٹر حیدرآباد ریجن کو خط۔ کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر ملک بھر میں کارروائیاں، 48 گھنٹے میں 22 تعلیمی ادارے سیل کر دیے گئے۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کا دورہ، اورنگی ٹاؤن کے 2 اسکول بند کرنے کا حکم۔ صورتحال کے باعث فیصلے پر نظر ثانی کر سکتے ہیں، آج نیوز سے گفتگو۔ آصف زرداری کی ریفرنسز خارج کرنے کی درخواست، احتساب عدالت اسلام آباد کل فیصلہ سنائے گی۔ پاک لین اور جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کی سماعت ہوئی۔ سابق صدر کی 3 گاڑیوں کی ضبطی روکنے کی درخواست، عدالت نے نیب سے 24 ستمبر کو جواب طلب کر لیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی اور چودھری شجاعت کو بڑا ریلیف، نیب نے 20 سال پرانی انکوائری بند کر دی۔ شواہد ناکافی ہیں، بینک بھی نادہندگی کی تحقیقات بند کر چکے، ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کروا دی۔ متحدہ سنی کونسل کے زیر اہتمام عظمت صحابہ و اہل بیت مارچ، اسلام آباد ایکسپریس چوک پر سٹیج سجا دیا گیا۔ ڈی چوک جانے والے راستوں پر کنٹینرز لگا دیے گئے۔ جناح ایونیو کئی مقامات پر بند، متبادل راستوں کے لیے ٹریفک پلان جاری۔ تہر قتل کیس کے ملزمان 1 ہفتے میں گرفتار کریں، سپریم کورٹ کا ڈی آئی جی حیدرآباد کو حکم۔ ملزم گرفتار نہ ہوئے تو لکھ دیں گے آپ عہدے کے قابل نہیں۔ ریکارڈ کیوں نہیں لائے؟ کہ آپ کو دعوت کے لیے بلایا گیا تھا، عدالت کا برہمی کا اظہار۔ کراچی کے 20% علاقوں میں روزانہ 9 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ کے الیکٹرک کا اعتراف، لوگ گرمی سے تڑپ رہے ہیں، آپ پہلے سے تیاری کیوں نہیں کرتے؟ نیپرا کا برہمی کا اظہار، کہا ہر شعبے میں خلا ہے، کمپنی کیسے چلے گی؟ غیر ملکی کانٹریکٹرز کی تفصیل طلب کر لی۔ لاہور میں آٹا پھر مہنگا کر دیا گیا، چکی مالکان نے کلو پر 2 روپے بڑھا دیے، قیمت 76 روپے تک پہنچ گئی۔ گزشتہ ہفتے بھی نرخ میں اضافہ کیا گیا تھا۔ مالکان کا کہنا ہے کہ گندم کی قیمت بڑھنے کے باعث آٹے کے نرخ بڑھائے۔ ارسال کر دیے گئے ہیں۔ عدالت نے دفتر خارجہ کو برطانیہ میں ہائی کمیشن کے ذریعے وارنٹ کی تعمیل کا حکم بھی دے دیا ہے۔ نواز شریف کی 22 ستمبر کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے، آج نیوز کے نمائندے آصف نوید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آصف بتائیے گا، اب ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری سیکرٹری خارجہ کو ارسال کر دیے گئے ہیں۔
जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में जो सजा के खिलाफ अपील थी उसमें मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर गुज़श्ता रोज तहरीरी फैसला जारी किया था, जिसमें नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे और उसमें नवाज शरीफ के नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जो है वो सेक्रेटरी खारजा को अरसाल कर दी गई है। दफ्तर खारजा को बरतानिया में हाई कमीशन के जरिए वारंट की तामील का हुक्म दिया गया। नवाज शरीफ की 22 सितंबर और दीगर तारीखों पर हाजिरी भी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है और वारंट असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जानिब से सेक्रेटरी खारजा को अरसाल किए गए। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किया और एवन फील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत के लिए वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। जी आसिफ नवीद, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलन बताने के लिए। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि कानून साजी करके एनआरओ को दफन कर दिया गया। रावलपिंडी में गुफ्तगू में उनका कहना था कि शहबाज शरीफ और बिलावल से कल मुलाकात हुई, सब पुरबाश हैं। अपोजिशन की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस नाकाम साबित होगी, मुस्लिम लीग नून से शीन का निकलना तय है। रावलपिंडी में वजीर रेलवे शेख रशीद ने रेलवे अस्पताल के नए ब्लॉक की इफ्तिताई तकरीब से खिताब किया। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, शहबाज शरीफ और बिलावल की कल मुलाकात हुई, सब पुरबाश हैं। अपोजिशन जलसा जुलूस ही खेलेगी। 20 सितंबर को APC नाकामी से 2-4 होगी। अपोजिशन अपने से बड़ा फैसला नहीं करेगी। ये जलसे और जुलूस करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। 20 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस है वो नाकाम होगी। अपोजिशन अपने से बड़ा कोई फैसला नहीं करेगी। शेख रशीद ने कहा, जो बिल्स नहीं मंजूर होने वाले थे वो भी मंजूर कराए। हुकूमत ने NRO को दफन कर दिया। नवाज शरीफ बुज़दिल हैं, जेल नहीं काट सकते। ये डील करके सऊदी अरब जाने वाले लोग हैं। जो बिल नहीं भी मंजूर होने वाले थे वो भी कल हुकूमत ने करवा लिए। नवाज शरीफ साहब ने आना, उनके लिए इतनी जुर्रत नहीं है उनमें। बुज़दिल लोग हैं, ये जेलें नहीं काट सकते। ये माफी नामे मांग कर सऊदी अरब जाने वाले हैं। वजीर रेलवे ने कहा, रेलवे में प्राइवेट पार्टनर्स को जगह देने का ख्वाहा हूँ। ML1 पर 2-4 दिन में टेंडर हो जाएगा और 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर किए गए बिल्स पर अपोजिशन का गुस्सा ठंडा न हो सका। कौमी असम्बली इजलास के आगाज पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने नुक्ता एतराज पर बात न करने पर वॉकआउट के बाद कोरम की निशानदेही की। कोरम मुकम्मल न होने पर इजलास बगैर किसी कार्रवाई के गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के ज़ेर सदारत शुरू हुआ तो अपोजिशन ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मुतालबा करते हुए एहतजाज शुरू कर दिया। अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। अपोजिशन के वॉकआउट होते ही मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कोरम की निशानदेही कर दी, जो नामुकम्मल निकला, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने इजलास आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया। ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर भी कोरम पूरा न हो सका, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। अभी आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान ने हरीपुर में पाक ऑस्ट्रिया फिकोश यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया। उन्होंने तकरीब से खिताब में कहा कि कोशिश इंसान करता है लेकिन कामयाबी अल्लाह ताला देता है। हमारा पहला मकसद अवाम का खुद पर एतमाद बहाल करना था। अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था हम उससे दूर निकल गए। वक्त आ गया है कि जहन को आज़ाद करके अपना रास्ता बनाएं। हम साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए अपना रास्ता बनाएंगे। इंसान कोशिश करता है, अल्लाह ने इंसान के हाथ में कोशिश रखी है, कामयाबी तो वो देता है। हम वो रास्ता ढूंढ रहे हैं जो कि कायदे आज़म जिसकी बात करते थे, जो अल्लामा इकबाल जिसकी ख्वाब देखते रहे, वो जो रास्ता था उस रास्ते से हम बड़ी दूर निकल गए। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, बड़ी जल्दी 15-20 साल के बाद एक डिपेंडेंसी सिंड्रोम आ गया, कॉन्फिडेंस चला गया, हम कॉपीज बन गए हैं, हम कॉपी करते हैं। अब है टाइम कि हम उसी रास्ते पे जाएं कि पाकिस्तान अब अपना रास्ता बनाए, हम अपने ज़हनों को आज़ाद करें। हमें पूरा बहैसियत कौम एक अब नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जाना है। वफाकी दारुल हुकूमत में बढ़ते जराइम के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस और डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला पर बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर उनका कहना था कि पीर को मुशीर दाखिला शहजाद अकबर, इसके अलावा IG इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला और चीफ कमिश्नर हाजिर हों। वफाकी दारुल हुकूमत में बढ़ते जराइम के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस और डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला पर बरहमी का इजहार करते हुए पीर को मुशीर दाखिला शहजाद अकबर, IG इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला और चीफ कमिश्नर को तलब कर लिया है। वफाकी दारुल हुकूमत में बढ़ते जराइम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पुलिस और डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला पर बरहम हुए। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर, इसके अलावा IG इस्लामाबाद को पीर को अदालत ने तलब कर लिया है।
कराची में फिर कई घंटे की लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। इलाका चाहे कोई भी हो, के इलेक्ट्रिक ने बिजली बंद करने में कोई कसर ना छोड़ी। गुज़िश्ता शब कराची के शहरियों ने जाग कर गुजारी। इलेक्ट्रिक हो गई अब बिना इलेक्ट्रिक के, न निजाम बदला और न ही रविश बदली। कराची में बिजली का बहरान बढ़ गया। औरंगी हो या कोरंगी, गुलिस्तान जौहर हो या गुलशन हदीद, फेडरल बी एरिया या फिर लियाकताबाद, सबसे किया बराबर का हिसाब। यानी कि इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग करने में बहुत इंसाफ पसंद, किसी इलाके से कोई तफरीक न की। और अब के इलेक्ट्रिक का वही पुराना रोना, 12 मिलियन मुकफ़्फ़िट गैस कम मिलने का बहाना कर दिया। न निजाम दुरुस्त, न इंतजामिया की नीयत सही। शहरियों ने रात भर के इलेक्ट्रिक को कोसा। एक दिन जाती है तो फिर रात को आती है 11 बजे, दूसरे दिन लोड शेडिंग की तो परेशानी बहुत है। लोगों को तंग करने, सिर्फ तंग करने वाली बात है और कुछ भी नहीं। 24 घंटे के दौरान तक कम से कम 8 घंटे लोड शेडिंग चल रही है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और कुछ नहीं कह सकते। बिजली है नहीं, लेकिन बिजली की कीमत बढ़ाने के ख्वाहिशमंद बेहिस इदारे को गुज़िश्ता रोज नेपरा ने भी झाड़ पिला दी थी। शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जितना इनकी जो मेरे साथ इनका ताउन शामिल हाल रहा, मैं ख़ुसूसी तौर पर मुल्तान के तमाम अरकान कौमी व सूबाई असम्बली, सुसन मखदूम, शाह महमूद कुरैशी साहब समेत सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के दिनों में वादा किया था कि हम जनूबी पंजाब सूबा बनाएंगे, आईनी तौर पे तो अक्सरियत इतनी नहीं है, लेकिन हमने जो वादा किया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर हम एक सेक्रेटेरिएट बनाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तरफ हमने पहला कदम रख दिया है। बहुत जल्द इंशाअल्लाह भावलपुर और मुल्तान से, दोनों जगहों से एक ही दिन इंशाअल्लाह उस सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह करेंगे, जिसमें इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हमारे तमाम जो मज़ीद अरकान होंगे वो शामिल होंगे इंशाअल्लाह। आपको पता होगा कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी, रूल्स ऑफ बिजनेस में काफ़ी तब्दीलियाँ करनी पड़ी, और आज 16 सेक्रेटरी जनूबी पंजाब के मुल्तान पहुँच चुके हैं। आज उनकी पहली बाज़ाब्ता मीटिंग भी मैंने कर ली है। इसके अलावा इस एरिया के लिए 33% बजट हमने रिंग फेंस किया है, जो कि दोबारा किसी और मंसूबे की तरफ इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। इंशाअल्लाह सूबा भी हम ही बनाएंगे, जो हमने वादे किए हैं इंशाअल्लाह एक एक वादा अपना पूरा करेंगे। मुल्तान एक मेगा सिटी है और इसकी मसाइल भी इतने ज़्यादा है, क्योंकि मुझे मुल्तान का पता है, तमाम मसाइल का मुझे इसका इतराक है। यहाँ का एक देरीना मसला था कि मुल्तान में 70 साल तक कोई जनरल अस्पताल नहीं बनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज निश्तर टू पे काम स्टार्ट हो चुका है। मुल्तान का एक और मसला है मुल्तान रिहाड़ी रोड का, तो PPP मोड पे इंशाअल्लाह अगले महीने इसके हम अखबार इश्तिहार भी दे रहे हैं। और आज सेंट्रल वुमेन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का भी हमने इफ्तिताह कर दिया है। जिस तरह के मिनिस्टर साहब ने आपको बताया कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के लिए भी फंड्स फराहम कर दिए हैं, और आज उसके संगे बुनियाद नए कैंपस की भी हमने रख दी है। कमिश्नर मुल्तान को हमने ये टास्क दिया है कि शहर के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट